بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العلي العظیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا اور عز و نیاز کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو. ان کے حق میں دعا کرو اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پہ رحم فرما. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے. اگر تم نیک ہو گئے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. شہر رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. آج 7 رمضان المبارک 1439 ہجری اور 22 تاریخ وہ چلی مئی کی. کنفیوژن رہتا ہے, معاف کیجیے گا اگر سال 2018 ہی ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علی رفعت آباد صاحب کا سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 سے 25 کی
تلاوت فرمائی انہوں نے اور ترجمہ پیش کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی. میں نے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جب بھی آیت کریمہ کو سنتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ وہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جو آپ اردو میں بھی اور ہم اپنی زندگی میں بھی برتتے ہیں, تو وہ اس سے سیکھنے کا ایک چھوٹا سا عمل شروع ہو جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ. ان آیا مبارکہ میں جہاں والدین کے حقوق کا ذکر آیا ہے تو عربی میں بھی اف ہی ہے. جیسے آپ اف کہتے ہیں کہ اف کہنے سے کیا ہوتا ہے, اف ہی ہے. اف ایک ایکسپریشن ہے اور اف ہی لکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے, اس کا کوئی معنی ہم اور نہیں نکال سکتے. اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ اپنے بزرگوں کو ان کے بزرگوں کی خدمت کرتے دیکھتے تو انہیں آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑتا, ان کا عمل بذات خود آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ اپنے والد کے سامنے جھکتے ہیں, پیار لیتے ہیں, گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کا بچہ بھی ایسے ہی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اگر آپ درستگی سے بات کرتے ہیں, سختی سے بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. اور اللہ ایسے وقت سے بچائے کہ وہ حکایت آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ جس میں وہ ایک کمبل لا کے والدین کے لیے استبل سے کمبل منگوایا کہ یہ والد کو دے دیا جائے, تو وہ بیٹے نے لا کے آدھا کمبل دے دیا. تو انہوں نے کہا آدھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آدھا آپ کے لیے رکھ لیا, جو آپ دادا کے لیے آج کر رہے ہیں, میں نے کہا آدھا میں آپ کے لیے رکھ لیا. تو آپ کا جو ایکٹ ہے وہ ایک بہت بڑی کمیونیکیشن ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے, ذرا اس دعا پہ غور کریں, میں اس کا ترجمہ ہی صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے پروردگار, جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا, تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما. یور پاسٹ از یور فیوچر. آپ خود کو دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کے اندر میں, آج جو بوئیں گے وہی کاٹنا ہوگا. اللہ کسی برے وقت سے بچائے, بے ادبوں میں ہمارا شمار نہ کرے, ماننے والوں میں سے رکھے اور مؤدب رکھے. میں گزارش کروں گا جناب محبوب احمد حمدانی صاحب بھی تشریف فرمائیں, حافظ مرغوب احمد حمدانی بھی تشریف فرمائیں, جو مناسب سمجھیں. چاہیں تو کچھ والدین کے حوالے سے کوئی پیام ہو یا کلام اقبال, جیسے آپ مناسب سمجھیں. بسم اللہ. جی بسم اللہ, بسم اللہ. جی بہتر. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی
تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو خدمت فاؤنڈیشن پاکستان بھر میں 10,000 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ صرف 3,500 روپے ماہانہ سے ایک یتیم بچے کی کفالت کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے۔ اپنی زکوٰۃ و عطیات کے لیے رابطہ کریں 0800 44448۔ کیونکہ ہم کریں گے انکشاف۔ دیکھیے پروگرام انکشاف بدھ کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سٹی 42 کا جو آواز ہے اس کی تلاش اور نعتیہ مقابلہ شروع کریں، حاضرین جو ہیں بیٹھے، السلام علیکم آپ سب کو، سلامت رہیے۔ میں نے کہا کچھ سوالات آپ سے کر لیں اور کچھ آپ تک پہنچ جائے، کچھ حوصلہ افزائی۔ ابھی آپ نے کلام اقبال سنا تھا، یہ مصرع سنیے، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، مائک جی ہاں جی 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 بہار ہو کے خزاں لا الہ الا لا اللہ۔ الہ الا اللہ۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ عمرے کے لیے بھی تشریف لے گئیں؟ جانا انشاءاللہ، تو آپ یہ ڈینی کی طرف سے احسن الکلام، اس میں سب دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے کے جائیں تو دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، بچوں سے سوال، چلے ایک اور سوال کر لیتے ہیں، اگر سحری کی ٹرانسمیشن دیکھی ہوگی آپ نے تو فوراً جواب آ جائے گا۔ یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ کتنی بار آیا ہے؟ بھائی کے پاس مائکروفون ان کو دے۔ 7 بار۔ نہیں بھیا، ادھر دے دیں جی۔ 4 بار ہے۔ نہیں یار، یہ تو میرے خیال میں ہی آپ کو بتا جی، اب یہ تو وہ ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں یہ تو تکے والا ہو گیا سلسلہ جی۔ 80 بار۔ آپ کا قریب ہے 82 بار، ٹھیک ہے جی، جواب آپ کا ہم ٹھیک مانتے ہیں۔ یہ جناب آڈیونکس کے ہیڈ فونز آپ کے لیے، جیتے رہیں بیٹا۔ اچھا جی، یہ بھی بتا دیں کہ کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ وہ پیچھے بھائی ہیں ادھر، ہم اگر چلے جائیں تو وہ بھی ایک ذرا نمائندگی ہو جائے گی۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، بالکل ٹھیک۔ اور یہ آپ کے لیے جناب فیئر میکرز کا گفٹ ہے، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ ایک سوال ہم اور کر لیتے ہیں، بلکہ 2 ہی کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے نام آئے ہیں؟ تعداد جی، وہ پیچھے کم و بیش 20 آئے ہیں۔ نہیں بیٹا، قریب بھی کچھ ہو تو، ہاں وہ نہیں کچھ لیکن نہیں، 37 ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، 37 ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بھائی پیچھے، اسرائیل۔ یہی تو خیر جھگڑا ہے، لیکن آپ اسرائیل تو ابھی کی بات ہے، وہ ادھر میں فلسطین۔ آپ لیٹ ہو گئے نا بابو، نہ ایسے، یہی تو مسئلہ چل رہا ہے، مطلب ہاں فلسطین قدیم۔ یہ آپ کے لیے چین 1 کا گفٹ ہیمپر ہے جی، سلامت ہے میم۔ اور یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے چلے مشکل سوال ہے، لیکن چلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بٹ جی چاندی والے جو ہیں ان کے بریسلیٹ کے لیے یہ سوال ہے۔ یہ بتائیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس فن میں ماہر تھے؟ حضرت ادریس درزی۔ نہیں ادھر میم شاید جواب دینا چاہ رہی، ادھر بتا دیں انہیں، مائک آ جائے تو پھر بولے۔ سوئی بنائی ہوئی تھی، سوئی ایجاد کی تھی۔ نہیں، اور یہ پیچھے بھائی، علم نجوم۔ نہیں، وہ تو آپ خواب کے حوالے سے وہ تو حضرت یوسف کا ہو جائے گا جی، اور وہ بھی نجوم نہیں۔ اور کوئی جی؟ فن کتابت، ٹھیک ہے جی۔ آج ہمارے سب سے سینئر کون یہاں بیٹھے؟ آج تو کوئی بزرگ تشریف نہیں لائے تو لیکن اب سینئر کون مانے گا؟ لیکن
अच्छा जी भाईजान, आपकी वालदा माजिदा हयात है माशाल्लाह, ठीक है जी। ये आप बट जी चांदी वाले ये ब्रेसलेट उन्हें हमारी तरफ से आप दीजिएगा, ठीक है जी, और दुआ के लिए भी कहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। फिर इंशाल्लाह बाकी वक्त आता है तो फिर आपसे सवाल करते हैं, लेकिन गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा, जितनी भी गुफ्तगू होगी उसमें से भी आपसे सवाल करेंगे। सलामत रहें जी। हाफिज साहब, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और आप नाम पुकारें। बेटा माइक मुझे दे दें ताकि जी जनाब महबूब अहमद हमदानी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये मुकाबला शुरू करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद असदुल्ला साहब तशरीफ लाएंगे जी और बाकायदा रिसालत में नजराना पेश करेंगे। वो जो आप थोड़ी सी कंडीशंस बताते हैं वो पहले ही बता दें, 2 अशार की, ताकि जी फिर 2 वो अशार पढ़ने। ठीक है बेटा, पहले ही आपको बता दिया 2 अशार पढ़ने और चलिए। फिल्मी गाने की तर्ज ना हो, पीछे बिल्कुल भी ठीक, बताया था, इनको बिल्कुल फिर ठीक। बता दें। बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे कौनैन बनाए गए, सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए, सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर। जज़ाकल्लाह। वाह, इधर ही ठहरे बेटा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह आज़म चिश्ती अलैहि रहमा का कलाम, अंदाज भी तकरीबन उन्हीं का जी, और खूबसूरत पढ़ा। छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं अभी, इसीलिए 42 ने इंतखाब किया है कि वो तशरीफ रहनुमाई भी हो जाए, ब्रशिंग भी हो जाए, पॉलिशिंग भी हो जाए साथ साथ। छोटी मोटी गलतियां जैसे इजाफत की गलती है, ठीक, और उसके अलावा लफ्ज़ों का आगे पीछे करना, और आखिर में आकर थोड़ा सा सुर भी कमजोर हुआ, लेकिन कंट्रोल वैसे बहुत बड़े, ओवरऑल कंपोजर बहुत अच्छा। जी हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब भाई ने जैसे बताया ना कि वाकई बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा सारा, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये आज़म चिश्ती साहब का कलाम नहीं है, ये मौलाना हसन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है। मौलाना हसन रजा साहब, और हमने सैयद मंजूरुल कौनैन साहब को, मैं तो जब सुन रहा था तो उन्हीं की याद, तरफ मैं सुरों की तरफ, वो जजमेंट की तरफ, जज जो बनाया हुआ आपने, सही, तो जजमेंट की तरफ ध्यान था ना, बिल्कुल ठीक। कलाम से जरा आज़म चिश्ती साहब असल में तर्ज और अंदाज चूंकि वो है तो इसलिए वो लगा महबूब साहब को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। जीते रहे बेटा, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, ब्लेस यू। आइए आइए तशरीफ लाएं जी आप साहब। नेक्स्ट तशरीफ लाएंगे अब्दुल रहमान साहब। जी आइए बेटा, माइक्रोफोन जरा लेवल बढ़ा के ही रखिएगा जो जजेस के। ठीक, बिस्मिल्लाह। बने हैं दोनों जहां, शाह दो सरा
दोनों जहां शाह दो सरा के लिए सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए बने हैं दोनों जहां मेरे करीब मेरे चार साज़ुब दनवाज मेरे करीब मेरे चार साज़ुब दनवाज तड़प रहा तेरे शहर की हवा के लिए तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए बने हैं दोनों जहां बेशक शाबाश। जज़ाकल्लाह। जनाब हाफिज़ मज़हरुद्दीन साहब का ये नातिया कलाम था। बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा भी आपने, बहुत अच्छा, लेकिन आपके पढ़ने में पुख्तगी नहीं है अभी, उसमें अभी जिसको कहते हैं ना कच्चापन है। हाँ। मेहनत की ज़रूरत है। जो मेहनत करते हैं उसको आवाज़ को भी पॉलिश करते जाते हैं, उनका तलफ़ुज़ भी ठीक होता जाता है, अदायगी भी ठीक होती जाती है। अभी कुछ मेरे ख्याल में मेहनत की ज़रूरत है। रिफाइनमेंट वाली जो है वो जरा थोड़ा सा। वो जी, है। बिल्कुल मरगूब ठीक। भाई अब बताएं। जी आप साहब। देखें जी, आपने दो जज बिठाए हुए ना, चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला होता है वो जज साहब का फैसला उसके मुताबिक नहीं चल सकता। मुझे तो यही लग रहा था कि ये जीत जाएगा, लेकिन जब कमी पेशी आई है ना, अच्छा जी। उसमें थोड़ा फिर इसके नंबर कम हो गए। यानी जज अच्छा वो हुआ, वो हो चीफ गए जस्टिस साहब का जो फैसला मैं मंजूर करता हूं। जज इख्तलाफ। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। आइए जी, आए बेटा आए, अब तशरीफ लाएंगी आनिया मिर्ज़ा। आए बेटा आइए, बिस्मिल्लाह, जीतते रहे। नेमतें बांटता नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया नेमतें बांटता दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो
तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता। शाबाश। मुझे जैसे याद पड़ता है इसने ऑडिशन में जो नात पड़ी थी ना, जी जी, वो बहुत अच्छी पड़ी थी। अच्छा जी, वो तैयार थी इसकी नात, इस नात की तैयारी नहीं थी। नहीं, लेकिन इसकी तो एक और टेंशन लाइव की, एक और भी तो होती है जी, वो तो वो ये नात जो इसकी पूरी तरह तैयार थी, जिसकी वजह से वो कमी बेशी आ रही थी, आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, सही है। तो ये पूरी तरह उस पर अबूर नहीं हासिल था। यार अब आप फैसला दीजिए। हाँ जी, क्या आपने कुछ बदला था वैसे नात जो आपने कह रहे हैं, जो पहले सुनाई थी, अब जो इंतखाब किया खुद ही किया माइक में? अच्छा, खुद ही किया, ठीक, खुद ही किया था, ठीक। तो इसी वजह से ये कोई मसले पैदा अच्छा जी, हुए। फैसला आज का आपको तो चीफ जज करार दे दिया हाफिज साहब ने। जी हाफिज साहब, कई बच्चों के साथ पहले भी यही हो चुका है कि ऑडिशन में उन्होंने बड़ी अच्छी नात पढ़ी थी, इसलिए अगली सिलेक्शन में आ गए। आपको अपनी कमजोरियों और स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए। तो यहाँ आके नात बदली ना, जो उनकी पहली नात होती थी वो बड़ी तैयार होती, बिल्कुल ठीक, दूसरी तरह उनकी तरह कमी होती थी, इसलिए वो फिर बच्चे। लेकिन आपको साथ साथ सफर करना है। जी महबूब साहब। जी, मेरे हिसाब से, और मरगूब भाई भी मेरा ख्याल है इत्तेफाक करेंगे, वो पहला बच्चा मोहम्मद असदुल्ला जिसने पढ़ा है। हाँ जी, मेरा भी यही ख्याल। और मैं आपको एक और बात बताऊं, असदुल्ला जो कंपोजर अपनी जगह, लेकिन मैं उनकी पेशानी पे जो पसीना देख रहा था ना, वो बड़ा बड़ा खूबसूरत है। मुझे लगता है बारगाह रिसालत में जब आप पेश हों तो कुछ ऐसी ही, और जितने कंपोजर के साथ वो पढ़े थे, बहुत बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी हमारे इनामात ले आए बेटा। जी बेटा, ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। जी ये जी जी बेटा, वो हेडफोन्स और दे दीजिए मुझे। पर इधर रखे हुए किधर है? वो आपका भी, सॉरी, आप तो जीते रहे, सलामत रहे, आ जाए। ठीक है जी, ये ले, ये बेटा, ये हैंड फ्री आपके साथ ऑडियोनिक्स की तरफ से, और आपके साथ हेडफोन्स जाएंगे, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जीते रहे। बल्कि आप सब लोग वहां से दुआ और प्यार भी लीजिए, महबूब साहब से भी और महबूब साहब से भी। मेरे आका करो खिदमत बाप तैमानी, बरकत वाला माँ प्यो बा। जज़ाकल्लाह। स्पीचलेस आप कभी सुनते हैं ना कि कोई लफ्ज जो है वो नहीं साथ देते, लेकिन ये लफ्ज जो है ये तीर और तलवार भी बन जाते हैं। ये लहजा जो है ये काट जाता है आपको। और मैं बड़े अदब से और माफी भी सब बुजुर्गों के साथ, ऐसा वक्त भी आता है खातिनो हज़रात कि आप ही ये कह रहे होते हैं कि अब्बा जी तानू की पता, अब्बा जी से आप कह रहे होते हैं कि अब्बा जी तानू की पता। और क्या हैसियत है इंसान की और एक शख्स की। वो कल ज़हीरुल हसन साहब और मुहतरमा नुरीद फातिमा बता रहे थे। सिर्फ इतनी सी बात है, मैं बल्कि आपको अपना बताता हूं। मैंने एक ज़माने में जब अभी उम्र 40s को क्रॉस किया तो मुझे लगा कि यार ये अब तो मैं समझदार हो गया हूं, अब्बा जी मुझे अब्बा जी ऐसे कहते हैं। तो एक दिन मुझे बैठ के ख्याल आया कि इस दुनिया में एक ही शख्स है जिसको दिल से यह हक हासिल है कि वो बिठा के मेरे सर पे जूते मारे 10 और गिने 1 और मैं उनके हाथों को चूमता रहूं, वो मेरे वालिद ही हो सकते। और आप यकीन करें, ये जो हमने ये बड़ों से सुना, हाफिज साहब बैठे महबूब साहब के मापिया दिया गालां ते शहद दिया नाला, ये जो सब्र है ये आपके बहुत काम आता है। ये रायगा नहीं जाता, ये बड़ा असासा है। और यकीन करें अभी, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स,
ऑरेंज लाइन ट्रेन पैकेज 2 पर आजमाइशी सर्विस का आगाज। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन ख्वाजा अहमद हसन ने ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया। आजमाइशी सर्विस का अली टाउन से स्कीम मोड़ तक 9 स्टेशन के दरमियान सफर। कमिश्नर लाहौर और मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद थे। लाहौर पार्किंग कंपनी स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। कमिश्नर लाहौर की नैब में 1.25 घंटे पेशी। अब्दुल्ला सुंबल को तहकीकात में मुआवनत के लिए तलब किया गया था। बंद इंतजामी मामलात पर जनरल मैनेजर आगा मामून भी पेश हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज अमीर अली की PP 159 की टिकट के लिए दरख्वास्त। रुहेल असगर ने भी NA 128 और PP 154 से टिकट के लिए दरख्वास्त दे दी। माह रमजान में मिलावट माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। विजिलेंस सेल का जाली मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। 7,000 जाली बोतलें बरामद। खाम माल कब्जे में ले लिया गया। और सिटी 42 के शहर रमजान से सहरो अफ्तार में पुरनूर नशरियात। मेजबान नूरुल हसन की ईमान अफरोज गुफ्तगू। दीनी मसाइल और उनके हल से मुतालिक सवालों जवाब। नाजरीन का इजहार पसंदीदगी। और ये वक्त और पहर राय हिदायत का हमारा सेगमेंट और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मजूबी चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और हकीम साहब ने बड़ी शफकत फरमाई जी। ये उनकी जो 200 तसानीफ हैं उनमें से एक ये हदिया उन्होंने की 1000 साल पुराने तिब्बी रूहानी भेद। सर 260 है। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। और ये महाना अबकरी ये भी पहुंचा जी बहुत ही। और इसमें 1-2 पॉइंट्स मुझे यकीनन मिले। आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मैंने इसमें भी ये एक जिक्र फौरन आया कि ये जो जिसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं शोर, ये हमारी तबीयतों पर फर्क डालता है? आप कुछ फरमाएंगे इस बारे? अगर फर्क ना डालता, जन्नत में जहां और नेमतें होंगी वहां शोर नहीं होगा। शोर नहीं होगा बिल्कुल। जन्नत में सारी नेमतें होंगी और जन्नत में तकलीफ तो होगी ही नहीं इंशाअल्लाह। वहां शोर की तकलीफ भी नहीं होगी। शोर की तकलीफ भी नहीं होगी। तो इससे जो तनाव पड़ता है जहन पे, चिल्लाहट, उकताहट, घबराहट और खास तौर पे ऐसा शोर जो तसलसल के साथ हो। अच्छा कांस्टेंट, जैसे अगर कोई मशीन चले एकदम तो आप ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। मसलन पंचक्कियां या ऐसी चक्कियां स्पेलर वगैरह जिनके लोगों के साथ घरों के साथ वो हों और वो शोर मुसलसल जा रहा है, खराद मशीन है वगैरह वगैरह, जनरेटर मुसलसल चल रहा है, उस शोर का असर जिंदगी पे आसाब पे पड़ता है। ठीक है। और इंसानी जहन में तनाव पैदा होता है। उसके बाद अदम बर्दाश्त की जिंदगी पैदा होती है। ठीक। और फिर अदम बर्दाश्त से मुआशरे में फसाद पैदा होता है। बिल्कुल ठीक। हमें अब फसाद की जरूरत नहीं है। उसकी वजह हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा हसन बसरी ने भेजा, अपना मोम भेजा और सुई धागा भेजा। ठीक। जब कासिद गया तो उन्होंने पूछा कि आपने मोम भेजे और सुई धागा, फरमाया उम्मत टुकड़ों में बटी है, आप इसको सुई धागे से सी दें। ठीक। और मोम यह है खुद जल के रोशनी दे जाए। अल्लाह अकबर। अब इंसानियत को सुई धागे की जरूरत है, कैंची की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। उसके लिए शोर इस पे बहुत असर डालता है। आप हमारी उमरा की बस्तियां देखें जिनको हम डिफेंस कहेंगे। जी। उमरा की बस्तियां, वहां शोर का बहुत एहतियात की जाती है। ठीक। तो हमारी जिंदगी में शोर नुकसानदेह है। ठीक। अब वो जो गांव है वहां बड़ा सुकून है और शहरों में देखें तो ट्रैफिक का भी हिजान है। और इवन अच्छा ये अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्मी जैसे लगती है मौसम में, जनरेटर आपने सुना लिया, उस गर्मी में रहना बेहतर है या उस जनरेटर को सुनना बेहतर है? सेहत के लिए दोनों में से चेक है। हम बड़े घबरा जाते हैं। देखिए गुजारिश ये है, जितना अपने आप को कमरों में बंद करते जाएंगे उतना अपने जिस्म को पिलपिला और कमजोर करते जाएंगे, उसकी इम्यूनिटी उतनी कमजोर करते जाएंगे। और जितना अपने खुली फजाओं में लाते जाएंगे। एक छोटा सा वाकया सुनाऊं जी। लाहौर के एक बड़े डॉक्टर हैं, गांव के रहने वाले, मुझसे कहने लगे जी कि आपके दर्स में सुना वालिदैन का अदब एहतराम। अब्बा जी को मैं ले आया, एक कमरा, बेहतरीन बेड, AC। 4 दिन के बाद अब्बा जी बीमार हो गए। अब अब्बा जी को दवाई दी जा रही,
फिर अब्बा जी कहने लगे मुझे ये मुआफिक नहीं, होम्योपैथिक मुआफिक है। होम्योपैथिक इलाज किया गया, फिर देसी इलाज। एक बड़े डॉक्टर कहने लगे, मेरे कोलीग कहने लगे अब्बा जी को उसी दरख्त की छांव में ले जा जहां हुक्का होता था, अब्बा तेरा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैं वालिद की खिदमत, कह रहे तेरी यही खिदमत है। और कहने लगे मैंने गाड़ी में बिठाया, अब्बा जी को ले गया। दूसरे दिन कहने लगे अब्बा जी ने सब दवाएं छोड़ दी, अब्बा ठीक है। वो खुली हवाओं फजाओं में उनका जिंदगी, माहौल और वो सारा वो सब बिल्कुल मैटर करता है इतना ज्यादा। उसी जिंदगी में जिंदगी थी। अब वो जिंदगी जब बदलती है इंसान बीमारी की तरफ आता है। बिल्कुल ठीक। अपने आप को जितना घुटनज़दा माहौल में, ये घुटनज़दा माहौल होता है जिसे हम लग्जरी माहौल कहते हैं। ठीक है। और फिर हमारी कंस्ट्रक्शन भी ऐसी होनी शुरू हो गई, वेड़ा हमने खत्म कर दिया। हाँ जी। वो जितनी जगह यूटिलाइज हो, तो सीढ़ियों के नीचे भी कोई टॉयलेट बना लो, इस तरह से। हमें क्या लगा कि ये जो हम वेड़ा छोड़ते थे इसका कोई फायदा नहीं था, हमारा ये ख्याल था। बहुत ज्यादा उस पे कच्चा होता था, छिड़काव डालते थे, चारपाई डालते थे, राज खुद एयर कंडीशन बनता था और ऊपर चादर लेनी पड़ती थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे एक कराची के दोस्त हैं, वो कहते हैं मेरे वालिद को रात को इंजाना का दौरा पड़ा, भागम भाग कोई टैक्सी तलाश की, एक साहब को देखा बड़ी अच्छी गाड़ी में, उन्हें जी हाँ आपको टैक्सी चाहिए, बैठिए, कितने पैसे लेंगे, अस्पताल में इतने पैसे। जब उनसे बातचीत चली, उन्होंने कहा मैं अरबपति आदमी हूं और घुटनज़दा माहौल की जिंदगी से थक गया हूं, अमेरिका में गया हूं, वहां दुनिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर, उसने मुझे कहा है कि फजर से पहले की फजाओं में जो खास ऑक्सीजन ओजोन होती है उसको लें। अब इस बहाने टैक्सी चला रहा हूं, मैं टैक्सी ड्राइवर नहीं हूं भाई, मैं आपसे पैसे नहीं लेता। अल्लाह, मैं उन फजाओं को ले रहा हूं जब सब गाड़ियां बंद होती हैं, धुएं खत्म होते हैं और समंदर आके अपनी शफाफ फजाएं लेके लाता है, जाता है, मैं उन्हें ले रहा हूं। और जब से ये लेना शुरू किया है तो मेरी दवाइयां खत्म, मैं दिल का मरीज खत्म, मैं सेहतयाब। सुभान अल्लाह। आप में से जो हाज़रीन बैठे वो भी कोई सवाल अगर हकीम साहब से करना चाहें तो जरूर आप नोट कर लें, हम आपकी तरफ आएंगे, आप हाथ बुलंद कर सकते हैं। एक फोन कॉल ले लें फिर आपकी तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात करें? खालिद बात कर रहा हूं। जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता बोलिएगा बस आपका सवाल। जी खालिद बात कर रहा हूं। जी खालिद साहब। काम था तो में गया, कंपनी बड़ा अच्छा काम चल रहा था, अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा ना। अच्छा, आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, अब अच्छा नहीं है? 4-5 मिनट बड़ा अच्छा था, अभी 4-5 मिनट काम नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा क्या किया आपने कि काम अब सही नहीं चल रहा? वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे। मैंने कहा क्या वजह हो गई आपके ख्याल में? सफाई नहीं हुई है, लेकिन जाने में गलती हुई है सफाई तो। अच्छा, जाने जाने में कोई गलती, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपके अल्लाह आपके हलाल रिस्क में बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कारोबार कह रहे थे अच्छा चल रहा है, लेकिन अब कुछ कह रहे जाने जाने में कोई गलती हो तो पता नहीं, लेकिन अब वो कुछ पिछले 4-5 माह से अच्छा नहीं। गुजारिश ये है कि हमारे कारोबार अच्छा न होने की वजूहात क्या हैं? ठीक, क्या हमारी नीयत और जज्बे में खराबी? मैं हमारे मोहल्ले में एक दूध वाला होता था, उससे दूध लेते थे तो अम्मा के यहां पतीला होता था, अम्मा को पता चल जाता कि इसकी भरत अच्छी है। अच्छा, बाज़-औक़ात करीब होता था, हम बच्चे थे, उससे लेके अम्मा पतीले में डालती थी, कहती थी दूध कहां से ले आए? और मैंने देखा वो मर गया, उसकी औलादों को रब ने रंग लगाया, वो भी मर गया, उसकी औलादें वही गरीब की गरीब है। अल्लाह। सबसे पहले नीयतों का असर है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। दूसरी चीज हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बात में सारे आले रसूल, आले बतूल, आले अकील, आले हारिस, आले फातिमा, आले हसन, आले हुसैन, असहाब रसूल की जिंदगी में सोहबत में बैठा हूं, उनकी सोहबत में बैठा हूं, और उनकी सोहबतों में बैठ के मैंने जिंदगी का तजर्बा किया है कि सूद का अंजाम तंगदस्ती और मुफलिसी है। सूद का अंजाम तंगदस्ती और मुफलिसी है। और तीसरी चीज यह है, बाज़ औक़ात कारोबार में नजर बद और जादू का असर भी होता है। यानी हम हर चीज को अगर जादू का लेबल लगाएं जी तो बहुत नामुनासिब सी बात है। बहुत नामुनासिब सी बात। स्केप गोट ढूंढ लेते हैं आपके इल्जाम किसी पे धरा जा सके। नंद पे, नंदोई पे, सौकन पे,
सौकन को सौकन कहते हैं ना, उसके सौकन होते हैं, हर वक्त कान देती है। हाँ जी, वो किन कहते हैं, वो उसको आंख बढ़ जाते 100 किन। ठीक, तो जादू भी होते हैं, नजर बद भी है, जिन्नाती असरात भी हैं। तो अगर वो असबाब हैं तो अपने रिस्क के हलाल को नियतों से और जज्बों से हलाल करें। और दूसरा एक दुआ है, मैंने बहुत तजर्बा किया है रिस्क के लिए, आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ, अल्लाहुम्मा मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इसका मैं एक छोटा सा वाक़या अर्ज करता हूं। लाहौर में स्टेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया चौक है। जी जी जी, ऑस्ट्रेलिया होटल भी उधर, होटल मस्जिद, वहां एक छाबड़ी वाले खड़े होते थे। ये बात आज से 18-20 साल पहले की बात। अच्छा जी। मैं ऐसे ट्रेन में आया, किसी दोस्त से ऐसे तारुफ हुआ, उसने अपनी गुर्बत तंगदस्ती का हाल सुनाया। मैंने कहा भाई ये छोटी सी दुआ है, थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, मेरे आका की अर्शी दुआ है और इसके फर्शी रिजल्ट कमाल है। अल्लाहुम्मा मक्फिनी, मैं फिर पढ़ता हूं, अल्लाहुम्मा मक्फिनी बेहलालिका अन हरामिका व अगननी बेफज़लिका अम्मन सिवाक। ये मसनून दुआओं की किताबों में आम मिल जाती है। ठीक, इसका माना यह है, मौला मेरी किफायत फरमा हलाल की राहों से और मुझे गनी कर दे, अगननी बेफज़लिका, अपने फजल के साथ, अम्मन सिवाक, सखी दर दर का भिखारी ना बना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मन सिवाक, मुझे किसी का मोहताज ना बना, पर अपने फजल से मुझे गनी कर दे, अपने फजल से मुझे गनी कर दे। और हलाल की राहों में अल्लाहुम्मा मक्फिनी बेहलालिका। आप यकीन जानिए, आज वो छाबड़ी वाला बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का मालिक है। और मैंने ये दुआ जिसको बताई, उसने दीवानगी से पढ़ी, दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते, वुजू बे वुजू। मुझे एक साहब यहां तक कहने लगे कि मुझे इजाजत दे, मैं ये दुआ ना पढ़ूं, अब गिने नहीं जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन नीयत का इखलास इसकी बुनियाद है, बुनियाद। बदनीयती के साथ नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सिद्रा बात कर रही हैं। सिद्रा, आपका सवाल। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे से बात करनी है। जी बात कीजिए। वो मेरा मसला ये है ना भाई, मेरा पैसा आएगा जल्दी मेरे पास सुनने। ये जो आपने कहा है आपको दोहराना होगा, जरा फिर से कह दीजिए। जी वो मैंने अपने भाई का मसला हल करना है। जी बताइए। लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो वो लड़की अच्छी नहीं है। लड़की के चक्कर से आपकी मुराद ये कि वो उस लड़की से शादी करना चाहते हैं? हेलो, लड़की के चक्कर से मुराद आपकी है कि वो उससे शादी करना चाहते हैं अपनी पसंद से? वो किसी लड़की नहीं है, तो वो घर वाले से समझा रहे थे कि वो किसी का छोड़ा है, तो आपको अपने तो बहुत चाहते हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि वो क्या करें? मैंने कहा कि मेरा भाई जो है वो एक लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो लड़की बगैर अच्छी नहीं है, वो पारिवारिक टाइप लोग हैं। अच्छा जी, अल्लाह खैर करे। तो मैं कह रही हूँ कि आप बताएं ना ऐसा कि वो इस चक्कर से निकल आए। कौन भाई? जी ठीक है जी। कौन किसकी बात कर रहे हैं? वो कह रही हैं, सिद्रा बीबी कह रही हैं कि उनके जो भाई हैं वो किसी लड़की के चक्कर में फंस गए और वो कह रहे हैं वो लोग, उनका ख्याल है कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छी कमाश के नहीं। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु के दो सिफाती नाम है, या मानेओ या सबूरो। या मानियो या सबूरो। अच्छा जी। या मानेओ या सबूरो जी। हर नमाज के बाद एक तस्बीह उसका सख्त तसव्वुर करके जी, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ के जी वो पढ़ें, और सारा दिन भी कसरत से उसका तसव्वुर करके पढ़ें। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है, भाई की तरफ से जितना हो सके रोज माली सदका करें। भाई का सदका दें। उसकी एक वजह पैसों का किसी जरूरतमंद को, लेकिन ऐसे जरूरतमंद को जो सवाल ना करता हो, क्योंकि सवाल करने वाला अपना घर पूरा कर लेता है। वो अपना घर पूरा कर लेता है। उस दिन शादमान चौक का मेरे पास एक साइल आया, मैं मौजू और की तरफ चला जाऊंगा। उसकी 2 हाईएस्ट चलती हैं। ये आपके लाहौर। एक मिनट, आप कह रहे हैं हकीम साहब कि वो जो एक शादमान चौक पे जो शख्स वहां हाँ, वो गदागरी से मुंसलिक है, उसकी 2 हाईएस्ट चलती हैं? हाईएस्ट चलती हैं। 1 to 5 मोटरसाइकिल है, एक 10 मरले का घर है। मैं अपना मुशाहिदा अर्ज कर रहा हूं। शादमान चौक आपके लाहौर में उसी इशारे का वो साइल है। ठीक है। तो बात मैं अर्ज कर रहा था, ऐसा शख्स जो सवाल नहीं कर सकता, थोड़ी तनख्वाह है, अयालदार है, और नफली सदका गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। हम तो गैर मुस्लिमों के लिए हमारे दिल में खैर खाही का जज्बा हो। जी बिल्कुल हो।
अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, आका ने फरमाया सदका बुराई के 70 दरवाजों को बंद करता है। बुराई के 70 दरवाजे ने, वो भी बहुत से सवाल करना चाह रहे हैं। आप पूछ रही थी कि बाल आपके बच्चे के, ये बैठे हुए किधर हैं जी? कैप उतार दो बेटा, कोई नहीं। अच्छा, वो अच्छे भले मेरे से तो घर नहीं है, बिल्कुल ठीक जी। वो कह रहे हैं बाल अच्छे करने के लिए क्या करना चाहिए कि बाल गिरे नहीं और गंजापन ना हो? अच्छे बढ़ने के लिए पहले पेट को देखना चाहिए, पेट में जा क्या रहा है। पेट में जा क्या रहा है, तो नोट करती जाए मैडम जी। देखिए, जो ग़िज़ाएं हम देते हैं वही ग़िज़ाएं हमें आउटपुट देती हैं, बिल्कुल ठीक, हमारे जिस्म के लिए। बिल्कुल ठीक। आज की नस्लों में बाल गिरने, गंजापन के असरात बढ़ रहे हैं। एक है एज फैक्टर के साथ, हाँ, और एक वो जीन्स में भी होता है जो जेनेटिक होता है जी। ठीक है, ठीक। जैसे आप हैं, बाल गिर गए, आपका इससे ताल्लुक नहीं है। ठीक। एक ये है कि नई नस्ल, उसमें बाल गिर रहे हैं छोटी उम्र में। उसमें सबसे पहले तो उनकी नाक भरें। अच्छा जी, वो जो आपने तेल का जिक्र जो किया था, ठीक है जी। दूसरा यह है कि उनके तलवों पे, पांव में तेल जरूर लगाएं। जब दरख्त की शाखें ऊपर से खुश्क होती है तो जड़ों को पानी दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। पैरों में तेल लगाया जाए, नाक का जो आपने कहा, तो ये रोजाना सोने से पहले किया जाता है जी, ठीक है जी। और तीसरी चीज, उसी सरसों, जैतून, कौन सा तेल? कोई भी, कोई भी। और तीसरी चीज, सागुदाने का इस्तेमाल बालों के लिए बहुत बाकमाल चीज है। सागुदाना खाएं बना के। सागुदाना सुबह नहार मुंह उस बच्चे को, उस जवान को जरूर इस्तेमाल करें। और क्या नहीं हो चीजें, वो भी जरा बता दें जी। जी। ऐसी चीजें जिनमें केमिकल हों, केमिकल और बाजारी चीजें हों, मैं उनका नाम नहीं लेता। बिल्कुल ठीक, मैं आपने उस रोज जिक्र कर दिया था। केमिकल और बाजारी चीजें, बे और चे दोनों से ही वो परहेज जो है वो किया ही जाए। बिल्कुल ठीक जी। आपका भी जी, जी एक दवा भी साथ अर्ज करो जी, बिस्मिल्लाह। इस सिलसिले में जी, कोकोनट ऑयल, ठीक, और आलमंड ऑयल, बादाम रोगन, ये दोनों मिला लीजिए। ठीक है जी। गिरी का तेल और बादाम रोगन, लेकिन अपने सामने निकलवाएं। ठीक है जी। और इसकी हल्की सी मालिश करें, चंद दिन चंद हफ्ते, तलवे, नाफ, पेट, यानी क्या देना है, ठीक है जी, और सर की तेल। अच्छा, वो कोकोनट और बादाम का ऑयल आप सर पे भी लगा सकते हैं, नाप पे भी, और सर पे ही लगाएं, और नाप पे उधर भी लगा सकते हैं, और पैरों के तलवों को भी मालिश। आप भी कुछ कह रही थी जी, बालों से मुतल्लिक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है, मेरे भाई हैं 15 इयर्स के और उनके सर के सारे बाल सफेद हो गए हैं, तो इसके लिए भी। ठीक, 15 बरस उम्र है, कह रहे सर के सारे बाल सफेद हो गए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सबब यही है, वजह यही है। ठीक है, कि आपका इंटेक जो आप खा रहे हैं वो आपको देखना होगा। हम बच्चों को पहले दिन से क्या दे रहे हैं, ठीक, उनको क्या गली मोहल्ले की चीजें दे रहे हैं, या बूढ़ियों की, अम्मा दादी की चीजें दे रहे हैं। और वो जो चीजें देंगे और वो चीजें उसके मुताबिक फिर शाखें उगेंगी, और ये बाल शाखें हैं। बिल्कुल ठीक। फिर फूल नहीं उगेंगे, झाड़ियां उगेंगी। झाड़ियां उगेंगी। तो जो आपने इनको बताया वो ये भी बिल्कुल 100%। ठीक है मैडम जी। आप जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सवाल कीजिए। सर, मेरे हस्बैंड हैं, उनके ना अक्सर खड़े होने वाला काम है, तो वो खड़े होकर करते हैं, उनका घुटना इतना सूज जाता है कि बिल्कुल टांग फोल्ड भी नहीं हो सकती, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, उनका वो मसला है। ठीक है। जॉब का नेचर ऐसा है कि ज्यादा देर वो खड़े रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि घुटनों में दर्द है, वो मुड़ने में प्रॉब्लम है, तो कुछ चेकअप भी कराएंगे आप? क्या तजवीज़ करें? मैं एक चीज इनके सिलसिले में अर्ज करूंगा। इस सिलसिले में एक टोटका है छोटा सा जी, वो मैंने बताया था, छोटी इलायची मेथरे के बीज जी, ठीक, वो इस्तेमाल करें। और एक दवा है माजून फलासफा, माजून फलासफा, किसी अच्छे दवाखाने की, ठीक है, बनी हुई, ठीक है, वो इस्तेमाल करें, माजून फलासफा। ठीक है जी। और इनके शोहर अगर मियां तलवों और पिंडलियों में तेल लगाएं, ठीक है जी, तो रात को नींद भी लाजवाब आएगी, ठीक है जी, आइंदा सुबह भी फ्रेश होंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह थकेंगे नहीं। ठीक है जी, ये हो गया जी। आपका भी सवाल था मैम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं कि जिसकी वजह से हमारे हर काम में आसानियां पैदा हो जाएं। जॉब का कोई ऐसा वजीफा बता दें कि जल्दी जॉब मिल जाए। एक बहुत मुबारक छोटी सी दुआ है, रब्बे यस्सिर वला तो अस्सिर। बस इसको जिंदगी का मामूल बना लीजिए। जहां आप देखते हैं कि मेरी जिंदगी में नाकामियां हैं, गलियां बंद, रास्ते बंद हो रहे हैं, और वहां रब्बे यस्सिर वला तो अस्सिर मुसलसल पढ़िए, अल्लाह गैब के खजाने से आफियतें, खैरें और बरकतों के दरवाजे खोले। बिल्कुल ठीक, रब्बे यस्सिर वला तो अस्सिर, बिल्कुल ठीक। और कोई सवाल है जी? आप, अच्छा हाँ, आप भी बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट, आप खड़े भी हो जाइएगा जरा जी। जी, अस्सलाम वालेकुम।
جیسے میرا ایک کویشچن تھا کہ بلڈ پریشر کے سلسلے میں میری والدین موجود ہیں، ان کا جیسے کہ بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے 80/120، لیکن ان کا جو نارمل ہے 120 to 180 رہتا ہے. اس کے لیے وہ ریگولر ایلوپیتھک میڈیسن بھی یوز کرتے ہیں، جتنا پرہیز ہو سکے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن بلڈ پریشر نہیں کنٹرول ہوتا. شکریہ بیٹا. 7 دانے آلو بخارے رات کو بھگو دیجئے، خشک آلو بخارے. جی ٹھیک. صبح مل کے اس کو استعمال کیجئے. ٹھیک ہے. ایک چیز. دوسرا، اس کے لیے بلڈ پریشر جس کا اب نارمل رہتا ہو، اس کے لیے ہماری ایک دوا ہے طب کی، جوارش شاہی. ٹھیک ہے جی. جوارش شاہی ہر کھانے کے بعد 1 چمچ لیجئے. ٹھیک ہے. لیکن اگر 7 آلو بخارے صبح شام استعمال کریں اس کا فائدہ زیادہ ہو. اچھا، اب آپ صبح شام یہ کریں گے، صبح بھگو کے پھر رات کو وہ کر لیں، اور شام والا بھگوئیں رات. وہ صبح. ایک وظیفہ اس سلسلے میں عرض کروں گا. جی جی. وہ بہت زبردست ہے بلڈ پریشر کے لیے اور بہت باکمال ہے. وہ ہے آپ اللہ پاک جل شانہ کے 2 نام پڑھیے. ٹھیک ہے جی. 2 نام، القدوس السلام، القدوس السلام، یا قدوس یا سلام، یا قدوس یا سلام. یہ 2 نام مبارک ایسے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کے لیے بہت باکمال ہیں، اور الحمدللہ اس سے صحت یابی، بلڈ پریشر نارمل. اس کو ہر نماز کے بعد 1 تسبیح پڑھیے، بالکل یا صبح شام پڑھیے، بالکل ٹھیک. اور سارا دن کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اول آخر 3 بار درود پاک. کوئی اور سوال اگر ہو جی تو اچھا. آپ لوگوں کے سوالات کی بدولت. جی فون کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں فیصل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فیصل میاں، کیا سوال آپ کا؟ جی سر، شیخ صاحب سے بات کرنی تھی. جی بات کیجئے. جی مجھے نائٹ بلائنڈنس ہے، اس کا کوئی وظیفہ یا مل جائے دوسرا؟ ہائی بلڈ پریشر تو نہیں کہا آپ نے کہیں کچھ؟ نائٹ بلائنڈنس. نہیں مجھے نہیں سمجھ آیا. شاہ جی آپ سمجھ سکے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ بلائنڈنس تو نہیں غالباً، خدا نخواستہ. سب کوری بھی جسے کہتے ہیں. نہیں میں نہیں سمجھ. ذرا دوبارہ بول دیں. نائٹ بلائنڈنس. اچھا، رات میں دیکھنے میں. بالکل ٹھیک. اسے شب کوری کہتے ہیں. اللہ آپ کو صحت دے. جی فیصل میاں ساتھ ہی رہیں آپ، سن لیں حکیم صاحب. شب کوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی یہاں رات کو نظر نہ آنا. ٹھیک ہے جی. جن لوگوں کو رات کو نظر نہ آتا ہو وہ کالی مرچ کا استعمال زیادہ کریں. کالی مرچ کا استعمال زیادہ کریں. اور شہد کی سلائی سوتے وقت ڈالیں. شہد کی سلائی سوتے وقت ڈالیں. آپ کو علم ہوگا کہ لگتا ہے، ویسے کہتے ہیں جو پیور شہد ہو وہ لگتا ہے. لگتا تو ہے. ہاں لگتا تو. لیکن آپ کو علم ہوگا کہ پرانے لوگ شہد آنکھوں میں ڈالتے تھے. جی جی، ہمارے ابا جی بھی اسی طرح ڈالتے. جی جی. شہد کی سلائی سوتے وقت ڈالیے. اور کالی مرچ کا استعمال کا طریقہ میں بتاتا ہوں. جی. کالی مرچ 1 چھٹانک پیس لیجئے. ٹھیک. پیس کے اس کو 1 چنے کے برابر تھوڑی سی شہد میں ملا کے چٹا دیجئے. اچھا جی. اور صبح دوپہر شام. ٹھیک. اور چند دن چند ہفتے. اور شہد کو آنکھوں میں ضرور ڈالیے. اور ایک اس سلسلے میں آیت عرض کرتا ہوں. تو رات سونے سے پہلے شہد ڈالنے؟ جی جی سونے سے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. فجعلناہ سمیعا بصیرا. فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ نظر کی کمزوری کے لیے بھی، اور جن کو راتوں کو نظر نہ آتا ہو شب کوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اگر مستقل پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 1 تسبیح یا کھلا، اللہ کے نام کی برکت سے ان کی آنکھوں کو اللہ روشنی عطا فرمائے. فیصل صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے اور آپ کی آنکھوں کو نور سے بھر دے رات کے پہر میں بھی. اور حکیم صاحب نے جیسے بتایا تو آپ اس کو برتیں اور انشاءاللہ اللہ رب العزت صحت دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. حکیم صاحب اور ہم آج کے اس سیشن کی کوئی ایک ٹوٹکا آپ کی طرف سے اگر ہم چاہیں جو جنرل جو آپ ہمیں وہ ہدیہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ روحانی یا طبی؟ جو آپ مناسب سمجھیں. میں آپ کو ایک روحانی دیتا ہوں چھوٹا سا، ایک طبی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اس دن آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ٹریفک بلاک ہو تو سورۃ الم نشرح پڑھی جائے. جی ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی راستہ بلاک ہو تو الم نشرح پڑھی جائے. آپ نے اس کو ذکر کیا تھا، وہ جس سے نذیر غازی صاحب نے بلکہ مجھے یاد ہے انہوں نے بتایا تھا. بالکل ٹھیک. کوئی بھی راستہ بلاک ہو زندگی کا. آپ نے دل کا بھی ذکر جی عرض کیا تھا کئی دل کے مریض ٹھیک ہوئے. اچھا حتیٰ کہ بچوں کے آج کل امتحان ہو رہے ہیں جی، تو مائیں ان کو سکھائیں، ان کو پڑھ کے دیں، ان کو پڑھ کے دم کریں. ٹھیک. اور گھر کے پانی پہ 1 بار بھی الم نشرح پڑھ لیجئے. اچھا. چاہے 1 بار پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. قرآن ہے، اس کی تاثیر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی بہت زیادہ طاقت اور تاثیر ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ میں
آپ کو روحانی ٹوٹکا عرض کر رہا ہوں. یعنی مٹکا ڈسپینسر کچھ بھی رکھا ہے تو اس میں آپ الحم نشا پڑھ کے ایک بار پڑھ لیجیے, ایک بار پڑھ کے پھونک دیں. اچھا کھانے بھی پڑھ لیجیے. بالکل ٹھیک ہے. جو کھانا کھائے گا ٹھیک ہے, اس کا حافظہ, اس کا ذہن, اس کی انشاءاللہ فصاحت بلاغت بہترین ہوگی. بالکل ٹھیک. ایک طبی ٹوٹکا جو میں آپ کو عرض کروں گا, جو ہمارا پرانا طبی ٹوٹکا ہے. جی پرانا. آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ باسی لعاب, باسی لعاب, ٹھیک ہے جی, دانوں پہ لگائیں, دانے ٹھیک. شاید آپ کی زندگی میں کبھی اس کے بارے میں سنانا ہو. اس سلسلے میں میں نے اپنی میں ایک آرٹیکل لکھا اور بہت سے لوگوں کے تجربات میں نے بیان کیے. اچھا جی. میرے پاس ایک کیمسٹری کے بہت بڑے پروفیسر ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. میرے پاس آئے ملنے کے لیے کسی علاج معالجے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک گورے سے ملا, وہاں پڑھ رہا تھا برلن یونیورسٹی میں. میں گورے سے ملا تو اس نے باسی لعاب پہ ریسرچ کی. ٹھیک ہے جی. اور کہنے لگا آپ رات کو مسواک کر کے سوئیے, منہ صاف کر کے سوئیے, صبح اٹھتے ہی جو باسی لعاب ہے وہ جہاں دانے, پمپلز, ددر اور کوئی سکن کی بیماری ہو. یہ تو میں نے سنا تھا, جو میں اب بتانے لگا ہوں وہ میں نے سننے میں نہیں آیا تھا. اچھا جی. لیکن جب آزمایا تجربہ عجیب ہوا. آپ نے اس پہ ریسرچ بھی پھر کی. جی ٹھیک. وہ یہ ہے کہ وہ باسی لعاب جن کی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے, آنکھ کے اندر لگائیں ایز اے سرما. اللہ اکبر. یعنی رات کے بعد کا جو پہلا لعاب ہوگا وہ اس کو اگر آپ دانوں پہ, آپ نے کہا جو آپ نے نہیں سنا تھا, وہ آنکھوں میں لگائیں. ہاں اس انفیکشن کو بھی دور. رات کو اچھی طرح دانت صاف کر کے سوئیے, برش کر لیا آپ نے, یا مسواک کر لی, مسواک کر لیجیے. اس کے بعد صبح اٹھتے ہی وہ لعاب لے کے آنکھوں سے اور انگلی سے دانت آنکھوں کے اندر ڈالیے, ہلکی سی چبھن. ٹھیک ہے. اس کے بعد آنکھیں دھو لیجیے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. اس کو جب سے بتانا شروع کیا ہے, بہترین انداز میں اینکوں کا اترنا, نظر کا تیز ہونا, اور جالا پھولا اور حیرت انگیز آنکھوں کا شفاف ہونا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. حکیم صاحب وہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ وہ رات سوتے ہوئے جو آپ نے دو بتائے تھے اسماء ربی, وہ جو ہاتھ رکھے, یا باعث ہو یا نور ہو, یا باعث ہو یا نور ہو, یہ نوٹ کر لیں جی جن کو رہ گیا تھا اس کو 11 بار. جی ٹھیک ہے. آپ دائیں ہاتھ بائیں طرف رکھیے کیونکہ ہارٹ ادھر ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اور اس کو سوتے ہوئے پڑھیے. ٹھیک. انوکھے کمالات ہیں. بالکل. دل کی دنیا آباد, روح کی دنیا آباد, من کی دنیا آباد, میڈیکل کی دنیا آباد, صحت و میڈیکل. آمین. اور وہ جو بیٹی ہے اس کو بھی دہرا دیں جو صبح. بیٹی کو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بستر سے اٹھنے سے پہلے یعنی بستر سے اترنے سے پہلے 11 بار پڑھیے. 11 بار یہ پڑھیں. اب بالفرض اتر بھی گئے تو کوئی ایسی شرط نہیں ہے, یعنی اٹھتے ہوئے یہ 11 بار پڑھیے. ٹھیک ہے جی, 11 مرتبہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. وہ شاہ جی کس حوالے سے تھی جو آپ کہہ رہے ہیں؟ زیارت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ایک اور آیا مبارکہ بھی بتائی تھی, غالباً نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ. شب جمعہ میں 2 نفل ہیں مختصر, جس کے پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں. جی جی. جو شخص شب جمعہ پہ سوتے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھے, جی, پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 11 بار. ٹھیک ہے جی. اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص قل واللہ 11 بار. ٹھیک ہے جی. بس آیت الکرسی بھی 11 بار اور سورہ اخلاص بھی 11 بار. اور اس کے بعد سلام کے بعد درود پاک پڑھیں, دعا مانگیں, اور کسی سے بات نہ کریں, درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں. یہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی آقا کی زیارت کے لیے تیر بہدف عمل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاکم اللہ بالخیر. حکیم صاحب سلامت رہیے, آپ کا آنا بھی خیر اور آپ کا جانا بھی خیر ہو. وہ خورشید صاحب کہتے تھے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں.